So last time we have completed up to the basic part of ionic equilibrium, which covered the acid-base theories and also the concept of pH and pOH. So today we'll continue further from the ionic product of water. Now this is a short topic but a very important topic to understand. Ionic product of water. You can have your notes with you so that as we progress, you can go through your notes also. I'll send this PPT also for you to refer. Now, when we talk about water, water has a tendency to combine with itself. This is called autoprotolysis. Autoprotolysis. Matlab, when two molecules of the same substance exchange the proton between them, it is called self-protolysis or autoprotolysis. So in case of pure water combining with itself and the proton exchange taking place, it will form hydronium ion and the hydroxide ion, H3O plus and OH minus. Now, since there is an equilibrium existing between the water and its ions, I can write the equilibrium constant for this reaction as K equal to concentration of the products H3O plus upon OH minus upon H2O. And 2 moles hai to I can write H2O square. But since we are not considering the pure liquids in the equilibrium, as their concentration do not change, that is why this particular concentration of water would remain constant, and I can shift it with the K on the left hand side. Now this will create a new constant, and that is represented as Kw. And that in turn is actually called the ionic product of water, because if you see the right hand side, it is a product of ions of water. That is why it is called ionic product of water. And the Kw is equal to the concentration of H3O plus times the concentration of OH minus. So that is the expression for ionic product of water. Now at 298 Kelvin, that is 25 degrees Celsius, the concentration of H plus and the concentration of OH minus, since they are in the same molar ratio of 1:1, they are of course going to be equal at any temperature. I repeat, the concentration of H plus and OH minus, since they are dissociated in equimolar proportions, their concentration will always remain constant at all the temperature. But at this room temperature of 298 Kelvin, their concentrations are found to be 10 raised to minus 7 molar. They are equal and found to be 10 raised to minus 7 molar. Therefore, Kw will have a value of 10 raised to minus 14 at 298 Kelvin. So this is the value of ionic product of water only at a temperature of 298 Kelvin. Now, as the temperature would increase, what will happen to the concentration of the ions on increased temperature? डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयंस ज्यादा डिसोसिएट करेगा या कम डिसोसिएट करेगा? ज्यादा तो टेम्परेचर बढ़ने पर H plus and the OH minus concentration will be equally increasing, and अगर दोनों concentration equally बढ़ रहा है तो Kw का वैल्यू भी बढ़ेगा. This says that the Kw का value is directly dependent on the temperature. The ionic product of water increases with increase in temperature. Are you clear with this? Yes, sir. Okay. Now, since this Kw is equal to 10 raised to minus 14, which in turn is the concentration of H3O plus times OH minus. To convert this in terms of pH and pOH, what is pH represented mathematically as?
Negative log of H plus. नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर यहाँ पर ऑन बोथ साइड्स इफ आई टेक नेगेटिव लॉग, so it becomes negative log of 10 raised to minus 14 equal to negative log of लेक्चर लगाना नहीं concentration. सुनना है उसमें। Yunus, please mute. Yes, so negative log of concentration of hydronium ion minus again log of concentration of OH minus. Now this term of negative logarithm of concentration of H plus is nothing but pH, and this term negative log of OH minus is POH, and this negative log of 10 raised to minus 14 will become 14. So we get the expression that pH plus POH is equal to 14. So this is how the pH scale up to the 14 is developed, but this is only specific at 298 Kelvin. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड. If I increase the temperature, so as temperature increases, the H plus concentration इंक्रीजेस। increases and equivalent to OH minus वो भी increase होगा. अब अगर H plus concentration बढ़ा तो pH, if H plus is increasing, what will be effect on potence? It will decrease. It will decrease because it's negative logarithm. तो अगर concentration बढ़ता है तो pH equal to POH दोनों equally घटेगा. प्लीज माइंड इट, equally घटेगा, इसलिए मैं equal to साइन लगा रहा हूं. ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली टेम्परेचर बढ़ने पर जो pH का स्केल है वो श्रिंक हो जाएगा कि एक्सपांड हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. सिमिलरली अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बोथ विल इक्वली डिक्रीज. तो pH और POH इक्वली बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो pH प्लस POH यानी जो pH का स्केल है वो एक्सपांड हो जाएगा. तो अब आप एक एग्जांपल समझो. 298 केल्विन पे द pH प्लस POH का वैल्यू वाज इक्वल टू pH plus POH at 298 Kelvin is equal to 14. ठीक है, सो pH plus POH का वैल्यू is 14. And what will be the neutral point in this scale? 7। Of course 7 होगा. ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी नो. अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं हाइपोथेटिकली 398 केल्विन इंक्रीज कर दिया तो व्हाट विल हैपन टू द पीएच स्केल? श्रिंक। और श्रिंक होके लेट्स से 12 पे आ गया, हाइपोथेटिकल है. अब अगर ये 12 पे आ गया तो इसका न्यूट्रल पॉइंट 6 हो जाएगा. बराबर. अब इस स्केल में अगर आपसे पूछा कि pH इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा? विल इट बी एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? बेसिक। Basic. Basic. So this type of questions are asked based on temperatures. Am I clear on that? सिमिलरली अगर मैंने टेम्परेचर को घटाया तो pH का स्केल एक्सपांड कर जाएगा. एक्सपांड मतलब मान लो 16 पे चला गया. अब आपका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर 8 हो गया. अब इस स्केल में अगर आपसे पूछा pH इक्वल टू 7 क्या है, एसिडिक। नाउ इट विल बी एसिडिक. समझा? तो pH equal to 7 is neutral only at 298 Kelvin. It will differ if the temperature is increased or decreased. Is this part very clear? I've covered the type of questions which comes from the temperature dependency of the pH scale. Any doubt in this? Please keep responding, everyone. No, sir. नो। अब इसी के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. If we talk about the concentration of water, is water का concentration in pure form same
under all conditions or it is different? Okay. Can you repeat? Is the concentration of water same under all conditions of temperature or it is different? Uh, it is the same. It is the same. It is Yes. same. Why? Because water का जो density है, it is intensive property, independent on the amount of water. मतलब पानी अगर 1 ग्राम लो या 1 किलोग्राम लो, उसका डेंसिटी हमेशा इक्वली रहेगा, whether you take 1 liter or 1,000 liter or 1 gram or 1,000 gram, anyways it is the same. And we know that the density is 1 gram per cc, or I can write it as 1 kilogram per liter. Yes or no? Yes. Now if I want to convert this mass into the moles, I have to divide the मास 18. को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 18 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो 1 किलोग्राम है दैट इज 1,000 ग्राम, डिवाइड बाय 18, ग्राम पर मोल हो गया, एंड पर लीटर मतलब डिवाइड बाय 1 लीटर। तो ग्राम कैंसिल हो गया, 1,000/18 के मोल्स आते हैं 55.55, इट्स अ फेमस वैल्यू, एंड मोल पर लीटर बिकम्स मोलैरिटी। So water का concentration comes out to be 55.55 molar under all conditions of temperature. मतलब this concentration is at all temperature fixed and any amount of water, any amount, क्योंकि वो intensive property है। मतलब आपसे बोला 650 ग्राम ऑफ वाटर का concentration क्या है, आंसर 55.55। अगर 1,000 ग्राम वाटर पूछा तो भी आंसर सेम होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज 55.55। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड अल्फा। ठीक है, हाउ इज अल्फा डिफाइंड? Number of moles associated upon total mole. यस, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन द टोटल मोल्स टाइम्स 100। मतलब परसेंटेज अल्फा अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विच इज डिसोसिएटेड एट 298 केल्विन कितना था? पानी कितना डिसोसिएट हुआ 298 पे? डू वी हैव अ वैल्यू? एट 298 केल्विन 10 रेज टू माइनस 7 Raised to मोल्स। -7. तो मोलार का मतलब मोल्स पर लीटर ना, तो 1 लीटर में इतने मोल्स डिसोसिएट हुए, लेकिन कितने मोल्स अवेलेबल थे 298 केल्विन पे? 55.55, because that is the concentration, always constant. Now if you divide this 10 raised to minus 7 by 55.55 को 1000/18 लिख सकते हैं, एंड टाइम्स 100। तो जब आप करोगे यहां पर कैलकुलेट तो 18 टाइम्स ये हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 8। अरे क्लियर? And this will become 1.8 times 10 raised to minus 7%. So just understand this concept that for the water at 298 Kelvin, only 1.8 times 10 raised to minus 7 moles are getting dissociated. मतलब 100 में से खाली इतने moles dissociate होते हैं, इसका मतलब it is almost negligible, and that's why a pure water is considered to be a very very weak electrolyte जो dissociate करता ही नहीं है। समझा? Yes, sir. So this is another value which you will remember
और मैंने जो डिराइव किया है वो डेरिवेशन भी अगर याद है तो यू डोंट नीड टू मग इट अप, यू कैन जस्ट डिराइव इट, बट अगेन दिस इज एट 298 केल्विन। अब यहां पर द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच। नाउ आइडियली डाइल्यूशन करने पर व्हाट हैपेंस टू द कंसंट्रेशन? decreases. बिकॉज डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, और वॉल्यूम बढ़ता है तो कंसंट्रेशन घटता है, और अगर कंसंट्रेशन घटता है तो पीएच क्या होगा? जी, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? decrease. Increase. अरे बाबा, डाइल्यूशन का मतलब पानी बढ़ाना, तो अगर डाइल्यूशन बढ़ता है, मगअप मत करो, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। और मैंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन और पीएच इनवर्स होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन घटा तो पीएच बड़ा। बढ़ेगा। समझा? Yes, sir. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू बी 10⁻⁻⁶ molar. What is the pH value for this? 6. 6. Now let's say the H plus concentration is increased by a factor of 100. अब कॉन्सेंट्रेशन को मैंने 100 गुना बढ़ा दिया, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻⁻⁴. 10⁻⁴, and the pH value will become 4. 4. 4. मतलब अगर रिलेशन समझो तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर 100 से बढ़ाते हैं तो pH का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है. And by a factor of how much? 2. अब 100 को कैन आई राइट 10⁻²? तो अगर 10⁻² से बढ़ाते हैं तो pH घटेगा बाय अ फैक्टर ऑफ 2। अगर 10⁻³ से बढ़ाया तो pH डिक्रीज होगा बाय अ फैक्टर ऑफ 3। 3. अगर 10⁻5 टाइम्स बढ़ाया तो pH घटेगा बाय अ फैक्टर ऑफ 5। इन शॉर्ट, अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो pH घटता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन को घटाते हैं तो pH बढ़ता है, आइदर वेज। बट इज द रिलेशन क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, तो Kw, pH and pOH, effect of concentration or dilution on the pH, all is covered in this part. And these are very, very simple questions which you will come across with respect to the pH, pOH values. Okay, now let's solve some numericals which are given in your synopsis. So please have a look at the problem 6.16 of the synopsis. Everyone. The page number is? नंबर क्या है? I don't have the original page number. Can you just tell me the page number? 111. Okay, 111. Please refer everyone. The question is, the concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink is given, and what is its pH? Yani the H plus concentration is given to be 3.8 into 10⁻⁻³ molar. तो pH ढूंढना है तो it is given as negative logarithm of H plus concentration. अब एक बार मैं ये पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में शॉर्टकट बताता हूँ। नेगेटिव लॉग ऑफ 3.8 इंटू 10⁻⁻³ मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग को ऐड करेंगे, तो इट विल बी माइनस लॉग ऑफ 3.8 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻³। नाउ नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻³ विल बिकम Plus 3. +3।
So I can just rewrite it as 3 minus log of 3.8. तो अब शॉर्टकट में when the H plus concentration is given in this format, the pH can be directly written as power minus log of the number. I repeat, power minus log of the number. तो पावर क्या है? 3 minus log of the number 3.8. अब मैंने लास्ट टाइम आपको लॉग्स बताए थे, तो log 3.8 is close to log of 4 and log 4 का value was 0.6. 0.6. so it is approximately 3 minus 0.6 which is approximately 2.4. 2.4 and फिर पूछते हैं अगर pH 2.4 है तो is the solution acidic, basic or neutral? Acidic. ठीक है, so these are the simple type of questions which are asked. So that's your answer. अब next question is very very important, problem 6.17, which asks calculate pH of 10 raised to minus 8 molar solution of HCl. मतलब H plus of HCl is given as 10 raised to minus 8. pH क्या होगा directly? 8. pH would be 8, but it would be wrong. pH should be 8 but it is wrong. And why? Why it is wrong? Because acid is given. That it's base. Because HCl Less is than 7. acidic और एसिडिक में pH 7 से कम होना चाहिए, ये तो pH 8 आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू तो 100% गलत है। अब गलत इसलिए है कि this concentration of 10 raised to minus 8 is even lesser than the concentration of H plus ions coming from water. मतलब यहाँ पर H plus in the solution is not only contributed by HCl, but it will also be added with 10 raised to minus 7 concentration coming from water. Am I clear with this concept? Yes. This is a very important question. हाँ? ध्यान रखना कि H plus अगर 10 raised to minus 7 या उससे कम दिया हो, then always you have to also add concentration of ions of H plus coming from water. Now, how to solve this? 10 raised to minus 7 common दिया, so this will be 0.1 plus 1, which will be in turn 1.1 into 10 raised to minus 7. So this is the real concentration of the H plus. And through this, if I write the pH, it will be 7 minus log of the number 1.1, which will be a value very close to 7, but less than 7, and it comes out to be 6.98. Options में अगर देखोगे, you will realize this value will be given 6.98, 6.96, ऐसा कुछ वैल्यू होगा जो 7 से नजदीक है लेकिन कम है। तो इसका एक जनरलाइजेशन मैं बता देता हूं। If the concentration of H plus is less than or equal to 10 raised to minus 7 molar, मतलब 10 raised to minus 7 हो, minus 8 हो, minus 9 हो, तो the pH value will be close to 7. Close to 7. Of course, less than 7. Close to 7 and less than 7. अब ये सेम चीज अगर OH माइनस के लिए होगा तो उस केस में pH का वैल्यू नहीं POH का वैल्यू होगा, एंड अगर pH का वैल्यू 7 से कम है तो pH का वैल्यू क्या पूछा मैंने? Greater than अगर 7, pH but का below. वैल्यू 7 से कम है तो POH का वैल्यू 7 से ज्यादा. 7 से कम है. 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा। Okay. अरे pH plus POH is 14. If I say pH is less than 7, POH will be More than 7. More than 7. More Yeah. than Yes. 7. Got it? So this is one very very important MCQ which I have solved.
The pH of 10 raised to minus 8 molar HCl is not 8. पहले तो गलत आंसर ध्यान रखो, not 8. It will be a value which will be close to 7. Now, if you know this logic and the concept, आपको ये solve भी नहीं करना है, because ये statements आपको समझ गया कि value will be very close to 7, but it will be less than 7. So it will be 6.96, 98, 6.94 के आसपास का वैल्यू, जो कि ऑप्शन में एक ही होगा। समझ में आता है? Yes, sir. Okay, great. Now let's move to some questions related to K and KB concept, which is given in the problem 6.8, 6.18, sorry. Tell me the page number, please. 115. Okay. Okay. The question is, ionization constant of HF is 3.2 into 10 raised to minus 4. What is the given value? KA. Ka. Ionization constant is same as dissociation constant, and for acid it is represented as Ka, given by 3.2 into 10 raised to minus 4. Calculate the degree of dissociation, meaning alpha of HF in its 0.02 molar solution. So the concentration is 0.02 molar. Calculate the concentration of all the species, which is hydronium, fluoride, and HF, in the solution and its pH. तो अल्फा भी ढूंढना है, concentration of all ions भी ढूंढना है, यानी H3O plus, fluoride F minus, HF का concentration, all needs to be found. So this is one single question, but MCQ form में ये तीन अलग question के form में आ सकता है. So one question, 3 different MCQs का concept. Now, whenever we talk about the alpha का value, then chemical equilibrium में भी मैंने बताया था कि अल्फा का कोई भी क्वेश्चन डिसोसिएशन वाला फाइंड करना है तो you always I stable. ice table. Go with the ice table. So HF in its aqueous solution when dissolved in water will dissociate to give H3O plus and 3O plus H3O plus and F F minus minus. F minus. तो aqueous का मतलब है हमने HF को पानी में डिसॉल्व किया, तो aqueous HF on dissolution in water will be giving you hydronium ion as H plus and the fluoride as the anion. अब 1 mole of HF अगर डिसोसिएट हो रहा है तो ice table बना सकते हैं. तो initially how much of the HF is available? 1 mole. 1 mole. How 1 mole? Initially 0.02. 0.02 मोल. अब 1 के लिए अल्फा होता है तो 2 के लिए 2 अल्फा, 3 के लिए 3 अल्फा, तो 0.02 के लिए 0.02 0.02 alpha. alpha. ठीक है. सो जनरल फॉर्मेट आपको बता रहा हूं आइस टेबल का. अगर यहाँ 1 है तो यहाँ अल्फा लेंगे, लेकिन यहाँ पे C है तो 3 alpha. C अल्फा. तो इनिशियली ये दोनों 0 था, चेंज में यहाँ पर ये C अल्फा बना, C अल्फा बना और C अल्फा कम हुआ, और इक्विलिब्रियम पे द कॉन्सेंट्रेशन विल बी C into 1 minus alpha and the concentrations here will be C alpha and C alpha. समझता है? सिंपल आइस टेबल है, और ये सेम आइस टेबल आपको कोई भी डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम के लिए वर्कआउट करना है, कुछ चेंज नहीं है. क्लियर? Yes, sir. ना अगर मैं यहाँ पर Ka का वैल्यू आपसे पूछूं तो इट इज गिवन बाय C अल्फा, सॉरी, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा.
ये तो ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ का ही डेरिवेशन हो गया, तो विच कम्स आउट टू बी अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 माइनस अल्फा इग्नोर करना है कि नहीं करना है, उसके लिए के का एक मैंने वैल्यू दिया था। बाय द वे, व्हाट इज द के का वैल्यू हियर? 3.2 into 10 raised to power minus 4. -4 का वैल्यू है। Hmm. तो इज दिस वैल्यू वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, और इट इज कंसिडरेबल? Considerable. के का वैल्यू जनरली 10⁻³ या उससे ज्यादा रहेगा ना, तो ही वो वैल्यू कंसिडर करना है, अदरवाइज जस्ट इग्नोर इट। एमसीक्यू पर्पस में आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं लाना है। तो अगर के का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा या इक्वल है, यानी -2 दिया, -1 दिया, तो ही कंसिडर करो। देन 1 माइनस अल्फा इज नॉट निग्लेक्टेड। तो उस केस में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, एंड उसको भी सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे? Ignore. इग्नोर कर दो। तो इग्नोर करके आई कैन राइट के ए विल बी अप्रोक्सीमेटली अल्फा स्क्वायर सी। तो अल्फा की वैल्यू आपको ढूंढनी थी, विच वॉज एज पर ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ गिवन एज रूट ऑफ के ए बाई सी। तो कैलकुलेटेड एज 1.8 इंटू टेन रेस, सॉरी, के की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन इज 2 इंटू 10⁻²। तो अब ये सब आइस टेबल करने की जरूरत ही नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको बता दिया सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर डिराइव्ड। मैं लास्ट टाइम भी HA एसिड के लिए कर चुका हूं। तो अब यहां पर दिस विल बी 1.6 एंड 10⁻⁻² हो जाएगा। अब बहुत लोग को ये कैलकुलेशन भी नहीं जमता है, तो मैं इसीलिए कैलकुलेशन बता रहा हूं थ्रू वन एग्जाम्पल। अब 10⁻⁻² जो है उसको तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इवन नंबर है, बट यहां पर 1.6 का डायरेक्टली रूट हमें नहीं पता है, बट किसका रूट हमें पता है? 16. 16। बट वो अगर हम मैं 16 भी लिखूं तो 10⁻³ हो जाएगा, जो ऑड नंबर हो गया। तो हमेशा कोई भी वैल्यू रूट के अंदर हो तो उसके 10 के पावर को इवन करना है। जस्ट रिमेंबर दिस बेसिक रूल, 10 के पावर को इवन करना है। अब इवन करना है मतलब आई कैन जस्ट रीराइट इट एज 160 टाइम्स 10⁻⁻⁴। विल दैट बी ओके? Yes, sir. अब -4 का रूट अगर बाहर निकालोगे तो 10⁻² आ जाएगा, एंड रूट ऑफ 160 इज वेरी क्लोज टू, बाय द वे आपको 14. स्क्वायर्स आने चाहिए, 169. एटलीस्ट 1 to 20 के स्क्वायर्स आने चाहिए। नहीं 12. आते हैं, रट लो, रिमेंबर इट। ये जिनको नहीं आते हैं उनके लिए मैं लिख के दे रहा हूँ। बाय द वे 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 160 का वैल्यू बिटवीन 12 एंड 13 है, एंड इट इज मोर क्लोजर टू 13। तो अप्रोक्सीमेटली आई कैन राइट 12 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो द Hmm. आंसर विल बी 0.12 समथिंग समथिंग। तो अब ऑप्शन में आप अगर देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.12 के आसपास। तो दैट इज हाउ वी फाइंड अल्फा। Now, the H plus concentration, which is H3O plus, and the F minus, up from the ice table, it was equal to alpha C. अरे yes or no? ये देखो ना, अल्फा सी का वैल्यू है। तो इसीलिए मैंने Yes, आइस sir. टेबल बनाया सो दैट यू अंडरस्टैंड कॉन्सेंट्रेशन अगर ढूंढना है तो इट विल बी 0.12 इंटू 2 इंटू 10⁻², which is 0.24 into 10⁻². Standard notation 2.4 into 10⁻³ molar will be the answer. ये दोनों इक्वल होगा। एंड HF का जो कॉन्सेंट्रेशन है रिमेनिंग वाला,
वो C into 1 minus alpha होगा, which will be 2 into 10 raised to minus 2 molarity. 1 minus 0.12 will be 0.88, and 0.88 times 2 will be 176. So 1.76 into 10 raised to minus 2 is your HF concentration molar. सारे concentration values हमने find out कर लिए. फाइनली आपको ऑल्सो पीएच ढूंढना था. देखो ये एक एमसीक्यू सॉल्व हो गया, ये दो एमसीक्यू सॉल्व हो गया, और अब तीसरा एमसीक्यू. पीएच को ढूंढना है तो हमें H प्लस चाहिए. एंड व्हाट इज द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन? 2.4 into 10 raised to minus 3. ये वाली वैल्यू है, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट पावर माइनस लॉग ऑफ द नंबर विल बी रिटन एज 3 minus 3 log of minus log of 2.4. 2.4. 3 माइनस लॉग ऑफ 2.4. अब log 2.4 का वैल्यू विल बी बिटवीन log 2 एंड log 3. Hmm. व्हाट आर द वैल्यूज? 0.3, एंड 0.47. 48. 0.4771 है, 0.48 दिया था. अब 2.5 का अगर वैल्यू ढूंढना है तो इट विल बी एन एवरेज ऑफ दिस टू वैल्यूज. हाउ मच इज दैट? 0.37, 0.39. 0.39. तो 2.4 का वैल्यू विल बी लेस देन 0.39. 3 माइनस 0.38 के आसपास का वैल्यू ले लो एंड यू हैव गॉट द आंसर एज 2.62. खत्म. तो लॉग्स को कैसे हैंडल करना है, रूट्स में कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना है, अल्फा के लिए कब के को या 1 माइनस अल्फा को इग्नोर करना है बेस्ड ऑन के वैल्यू, वो सारी चीज मैंने इस एक एग्जांपल में आपको बताया है. अरे आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. फाइन. सिमिलरली एक बेस का क्वेश्चन ले लेते हैं. 1.920 आप सॉल्व कर सकते हो. अब सिमिलर लाइंस पे मैंने बता दिया. 6.21 पे आ जाओ. पेज नंबर देखो क्या है. 118. 118. प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन. ये केबी के टर्म्स में है, बट डेटा अलग तरीके से देकर आपको कुछ और पूछा है, बट फंडा सारे लिंक्ड है. तो क्वेश्चन है द पीएच ऑफ हाइड्रोजीन सॉल्यूशन. व्हाट इज हाइड्रोजीन फॉर्मूला? N2H6. N2H4. हाइड्रोजीन इज NH2NH2. NH2NH2. क्या हो गया फॉर्मूला? N2H4 H2N NH2. एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन, अगर पीएच 9.7 है इसका मतलब क्या है? बेसिक। Basic. ऑफ कोर्स बेसिक सोल्यूशन है. और अगर बेसिक सोल्यूशन है, विल यू डील विथ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस? OH माइनस। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सोल्यूशन बेसिक है, यू डील विथ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. You will be dealing with Kb values and you will be dealing with POH. तो आपका हर एक सॉल्विंग जो है अब इनके टर्म्स में होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. एसिड है तो H प्लस पीएच और K से डील करते हैं. ऑफ कोर्स बेसिक होगा तो OH माइनस POH और Kb के साथ डील करोगे. वेरी इंपॉर्टेंट. आगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन इज गिवन एज 4 times 10 raised to minus 3 मोलर एज पर द डेटा. और आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kb और pKb ढूंढना है. तो ऑफ कोर्स बेस है तो Kb ही रिलेटेड होगा. अब मुझे अप्रोच बताओ. हाउ वुड यू रीच टू Kb वैल्यू? We find POH. Then we take anti-log of POH to get KB. एंटीलॉग ऑफ POH. We take POH is equals to negative log K. Wait.
We find OH OH minus minus what? constant, हाँ दैट इज एंटीलॉग ऑफ POH या माइनस VOH। Minus POH. हाँ वो माइनस साइन मिस करेगा तो खत्म हो गया, Hmm. है ना। परफेक्ट, तो OH माइनस मिला, आगे। Hmm. And then um, products upon reactants का we take the अच्छा, KB ढूंढने के लिए वी रिक्वायर अल्फा, है ना, रूट ऑफ अल्फा बाई सी। yeah उल्टा सोच, KB ढूंढना है तो KB का फॉर्मूला है सिमिलर टू दिस ना, सिमिलर टू दिस। yes तो KB इज अल्फा स्क्वायर सी ओनली। सी hmm. मुझे पता है, अल्फा नहीं पता है। अब मुझे बताओ अल्फा कैसे ढूंढेगा। जैसे यहाँ पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज अल्फा सी, देयर OH माइनस विल ऑल्सो बी। alpha Alpha. C. अल्फा सी। अब अप्रोच क्लियर हुआ। देख मैं स्टेप लिखता हूँ। अप्रोच क्या है, पीएच दिया हुआ है, उससे तो पीओएच ढूंढेगा क्योंकि बेस के साथ डील कर रहे हैं। उससे आप OH माइनस ढूंढ लोगे। OH माइनस इज इक्वल टू अल्फा सी से अल्फा ढूंढेगा, और अल्फा Hmm. से KB ढूंढेगा, और KB से PKB ढूंढेगा। ये डिफिकल्ट नहीं है, आपको अप्रोच खाली सोचना है। अब खाली मैं ये अप्रोच फॉलो करने वाला हूँ। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? Yes sir. प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको KB ढूंढने के लिए रूट ऑफ अल्फा बाई सी का फॉर्मूला स्ट्राइक होता है, बट उसमें अल्फा अननोन था। अब अल्फा ढूंढने के लिए OH माइनस इक्वल टू अल्फा सी का फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन हमें OH माइनस डायरेक्टली नहीं दिया है तो हम POH से ढूंढेंगे। बट POH भी नहीं दिया तो हम PH से ढूंढेंगे। तो फिर मैंने पूरा दिमाग में अप्रोच फाइनलाइज करके क्या बोला, PH दिया है, POH ढूंढो, OH माइनस ढूंढो, अल्फा ढूंढो, KB ढूंढो, PKB ढूंढो। लेट्स डू इट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में POH विल बी 14 माइनस PH विच विल बी इक्वल टू 4.3। अरे बोलते जाओ हाँ कि नहीं। Yes. फिर सेकंड मैंने बोला OH माइनस ढूंढेंगे बाय टेकिंग द एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव POH। Hmm. एंड कैन वी फाइंड एंटीलॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर? No. No. वी हैव टू कन्वर्ट टू Bar. अ Bar बार, only. Bar 5 एंड bar उसके point लिए 7. शॉर्टकट था डेसिमल के पहले द वैल्यू इज टू बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, कन्वर्ट टू बार 5, Hmm. एंड 10 में से 3 माइनस करके 7। अब बार 5 को तो सीधा 10 पावर -5। -5. -5 में निकाल दो। एंड एंटीलॉग ऑफ 0.7 इज हाउ मच? 5। 5. 5, because log 5 is 0.7, anti-log of 0.7 is 5, 5. तो 5 into 10 is to -5 मोलर मिल गया। Yes sir. अब the OH minus concentration is given by a formula of C alpha. So on the left hand side, 5 into 10 is to -5 will be equal to C is given as 4 into 10 is to -3 into alpha. So your alpha का value is 5 upon 4 is 1.25 into 10 raised to -2 मिला अल्फा। Yes sir. अब KB is given by alpha square C. So that's 1.25 का square, let me just write, into 10 power -4 हो जाएगा, into concentration is 4 times 10 raised to -3. अब 1.25 का स्क्वायर, अच्छा 5 नंबर एंडिंग का स्क्वायर इजी वे में ढूंढ सकते हैं ना। Hmm. हाउ टू फाइंड दिस 125 का स्क्वायर? एनी नंबर एंडिंग विथ 5, उसका एक कॉमन ट्रिक है, 5 का स्क्वायर ले लो 25, और उसके आगे जो भी नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, मतलब 12 विल बी मल्टीप्लाइड 21. बाय 13। कितना आ रहा है? 156। 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 करना है। अरे समझा? Yes sir. हाँ तो सर. 125 का स्क्वायर 15625 आता है, तो 1.25 के लिए 4 डेसिमल ऐसा हो जाएगा, और आपको ऑलमोस्ट 2 डेसिमल तक ही लेना है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ 1.56 आया,
और 10⁻⁻1 हो गया इंटू 4. 1.5 almost 4 times is approximately 6.24. 6.24 into 10⁻⁻1. Should be -7. Sorry. Okay. Yes. Okay. Now, if you look at the value which we have got and the value in the question, basically थोड़ा सा difference आने वाला है, because यहाँ पर KB का जो अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा है उसको कंसिडर करके किया हुआ है, तो वैल्यू थोड़ा सा फर्क आएगा. बट इट्स फाइन. आपका 10 का पावर आप देखोगे तो दैट इज -7 इन बोथ द केसेस. और फिफ्थ में PKB के लिए डायरेक्टली क्या फॉर्मेट है? Minus log KB. हाँ, बट डायरेक्ट मैंने क्या बोला? पावर माइनस Number. Log 6.24. लॉग ऑफ द नंबर. और लॉग 6 का वैल्यू क्या था? अरे लॉग 6 0.78. 0.7. उससे थोड़ा आगे का वैल्यू लेना है तो 0.8 ले लो. अब 0.8 से माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 6.2 के आसपास हो गया. तो ऑप्शंस में आपके पास वैल्यू होगा 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट. अब 6 पॉइंट की वैल्यू मिल गया, इसके बाद आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो करेक्ट आंसर. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन हैज सॉल्व्ड मेनी ऑफ द डिफरेंट MCQs. आपको या तो OH माइनस ढूंढने बोल सकते हैं, या सिर्फ अल्फा ढूंढने बोल सकते हैं, या KB ढूंढने बोल सकते हैं, या PKB ढूंढने बोल सकते हैं. ठीक है. सो जब मैं ये PPT शेयर करूंगा आपके साथ, प्लीज गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस अगेन, सॉल्व देम अगेन एंड देन स्टार्ट विद द MCQs. डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना. Hmm. ठीक है. Yes, दूसरी sir. बात, रिमेंबर, इफ वी हैव एन एसिड, let's say HA, then the A minus which is obtained anion is called its Conjugate. conjugate. बोलना पूरा. अरे कोई भी एसिड H प्लस देने के बाद उसका कॉन्जुगेट Conjugate base. बेस बनाता है. Base, conjugate base. अब इस एसिड का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है, तो उसके कॉन्जुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb होगा. Hmm. और K और Kb का प्रोडक्ट हमेशा Kw के बराबर आता है. मतलब Ka for an acid and Kb for its conjugate base is always equal to 10⁻⁻14, or other way around, the pKa plus pKb will be equal to 14. ये दो रिलेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक कॉमन डाउट इसमें, अगर मैं HF और NH4OH की बात करता हूं, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और इसका Kb, क्या इसका Ka और Kb 10⁻⁻14 के बराबर होता है? नहीं. नहीं. This Ka and Kb is the relation for an acid and its conjugate base. मतलब for different acid and base, Ka into Kb is not 10⁻⁻14. ये गड़बड़ करना नहीं. अगर एक एसिड है और कोई दूसरा बेस है, दूसरा समझता है, डिफरेंट बेस, तो उनके लिए Ka-Kb रिलेशन इज नॉट वैलिड. इट्स वैलिड ओनली फॉर एसिड एंड इट्स उसका कॉन्जुगेट बेस. रिपीट, उसका कॉन्जुगेट बेस. So this is very important to be remembered. Understood. Yes, sir. ठीक है. So that is also given. थोड़ा आगे की तरफ जाओगे तो it's given over there. Okay. Now let's move to the
other part which gives you the different concepts and the effect of the pH. Now I'll start with three of the important parts of this chapter. The first part is common ion effect. पहले समझाता हूं, उसके बाद इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा. Let's say I have a very weak acid like HF, which is going to dissociate partially as H plus and OH minus. अब Sir, इसके F अंदर, minus. अब इसके अंदर let's say I add HCl. मतलब what I'm adding is a very strong acid. Okay? So I had a weak acid which is dissociating partially to H plus and F minus. And to that I'm adding HCl, which is going to dissociate completely into H plus and Cl minus. अब इस solution में what are the ions which are present? H plus F minus Cl minus. H plus, F minus and Cl minus. तो दोनों में H plus is basically common. तो इसी को बोलते हैं कॉमन आयन. अब ये कॉमन आयन इस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा. अब कैसे अफेक्ट करेगा? HCl तो पूरा डिसोसिएट किया, इसका मतलब सोल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? Increased. Increases. इंक्रीज हो गया. अब अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम भड़क गया. Backward. एंड भड़कने की वजह से रीएस्टेब्लिश करने के लिए द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. Backward direction. और अगर बैकवर्ड में शिफ्ट कर रहा है तो HF का डिसोसिएशन कम हो कम होगा. कम हो जाएगा. मतलब अल्फा का वैल्यू कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. इट विल डिसोसिएट लेस. अल्फा विल decrease because the HF का dissociation also decreases. अरे क्लियर? Yes. Yes. और अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो pH क्या हो जाएगा? Decrease. Decreases. घट जाएगा. Decrease. ठीक है. तो यहाँ पर शॉर्टकट ये है कि कॉमन आयन इफेक्ट एक वीक एसिड को और भी Weak Weak. करता है. Weak बनाता वीक है. करता है. तो मरे हुए को और भी मार देता है. दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट. मरे हुए को और भी मार देता है. दैट्स कॉमन आयन इफेक्ट. मतलब अ वीक एसिड बिकम्स वीकर. तो इसका सिंपल शॉर्टकट स्टेटमेंट रिमेंबर, वीक बिकम्स वीकर. सेम इज वैलिड फॉर एनी वीक बेस ऑल्सो. बट उसका कंक्लूजन ये है कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने की वजह से. इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया बैकवर्ड में. HF का डिसोसिएशन कम, अल्फा कम, pH भी कम. अंडरस्टूड? Yes, sir. दूसरी बात, इसका Ka का एक्सप्रेशन विल बी नाउ गिवन एज H प्लस इंटू F माइनस अपॉन HF. बट ये जो HF का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, it is the sum of H plus coming from HF and also the H plus coming from HCl. Hmm. But HCl से आने वाला H plus will be much Greater. greater as compared to H plus coming from HF. मतलब क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? ये जो H plus कॉन्सेंट्रेशन है इसको सिर्फ वैल्यू लोगे कमिंग फ्रॉम Strong. HCl. HCl. अरे अंडरस्टूड? Yes, sir. एक क्वेश्चन बताता हूं आपको. F माइनस कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है फॉर 0.02 molar HF and the Ka value is given 10 raised to minus 5. हाइपोथेटिकल वैल्यू लिया है मैंने. एंड आगे दिया है इन
0.1 molar HCl. ठीक है, तो HF in 0.1 molar HCl मतलब ये कॉमन आयन समझता है आपको? Yes, sir. ठीक है, और अगर ये कॉमन आयन है, इसका मतलब नाउ द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विल बी नॉट टेकन एज सी अल्फा। सी आइडियली इसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता कितना है? सी अल्फा प्लस द H प्लस कमिंग फ्रॉम HCl। बट ऑफ कोर्स ये सी अल्फा की वैल्यू इससे तो बहुत कम होगी, तो इसको हम निग्लेक्ट करके हम क्या लेते हैं? H प्लस कमिंग ओनली फ्रॉम HCl। समझा ये? H प्लस नेट हो गया, बट उसको लेना Yes. कितना है? ओनली कमिंग फ्रॉम HCl। तो अब जब सब्सटीट्यूट करोगे तो आई विल गेट 10⁻⁵ ऑन द लेफ्ट। H प्लस इज ओनली 0.1 इंटू F माइनस कॉन्सेंट्रेशन मुझे ढूंढना है विद द HF गिवन एज 0.02। तो ये हो गया 0.2 और F माइनस की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁶, विच इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि मरे हुए को और मार दिया ना उसने। ऑफ कोर्स जो F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी तो घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? Yes, sir. लुक एट द नेट कंक्लूजन। इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, आपको सिर्फ ये फ्लो फॉलो करना है एंड देन एनी क्वेश्चन कुड बी सॉल्व। So I've solved one very important MCQ with regards to common ion effect and the effect on the concentrations, alpha, pH values, and the effect on equilibrium, of course. Clear? Yes, sir. Okay. Next. Coming to another important topic of this chapter, hydrolysis of salts. Now, what are salts and how they are formed? Acid-base reactions. Correct. Salts are ionic compounds formed by acid base का neutralization. जैसे NaCl is a salt, ionic compound formed by neutralization between Na plus and Cl. नहीं NaOH and HCl. HCl। अब देखो एक सिंपल चीज बताता हूँ। सॉल्ट क्या होता है? इट इज एन आयोनिक कंपाउंड। बेस्ट एग्जांपल मैंने बोला Na प्लस और Cl माइनस। अब ये किसका सॉल्ट है उसको समझने के लिए द प्लस विल बी एडेड विथ माइनस, माइनस विल बी एडेड विथ प्लस, यानी H प्लस। तो अब यहां पर आप बोलोगे NaCl इज अ सॉल्ट किसका? बोलो रे। NaOH and HCl. एंड फर्दर आप ये भी बोलोगे दैट इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH and strong Strong acid acid. HCl. So this is how we are going to define the salts. ये क्लियर है? Hmm. Yes, sir. अब salts can be a combination of strong acid, strong base, and the weak acid, weak base, and strong weak combination. तो ऐसे चार टाइप के salts आते हैं: strong acid, strong base, strong acid, weak base, weak acid, strong base, and weak acid, weak base. ठीक है, सॉल्ट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। अब एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोल दो, उसके कटायन अनायन को आप ले लो एंड यू विल डायरेक्टली गेट द एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्ट। जैसे इफ आई टेक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड द स्ट्रॉन्ग बेस एज NaOH, व्हाट इज द सॉल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट? NaCl. HCl. है ना, समझ में आ गया? तो NaCl। Now I'll just speak some examples. You tell me the salt example. Strong acid HNO3 and a strong base KOH. KNO. PaO3.
Can you name it? Potassium Potassium nitrate. A strong acid like perchloric acid, HClO4, and strong base like barium hydroxide. Hmm. एसिड है परक्लोरिक एसिड, बेस है बेरियम हाइड्रोक्साइड, Barium Barium perchlorate. बेरियम परक्लोरेट। तो बेसिकली क्या करना है, एसिड से H को निकालना है, तो परक्लोरेट आयन मिलेगा ClO4 माइनस, और बेस के बेरियम हाइड्रोक्साइड से कटायन बेरियम निकालना है, विच इज बेरियम। अब क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करोगे तो इसका फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा, एंड दैट विल बी BaClO4 ट्वाइस, दैट्स बेरियम परक्लोरेट। अरे अंडरस्टूड। Yes, sir. अब स्ट्रॉन्ग वीक के कॉम्बिनेशन में एग्जाम्पल, acid like HCl and base, weak base like NH4OH, NH4Cl. called ammonium chloride. Hmm. Strong acid like HNO3 and the weak base like magnesium hydroxide. MgNO3 twice. और नाम भी समझ में आता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, Mg का 2+ नाइट्रेट का -1, क्रिस क्रॉस रूल, MgNO3 ट्वाइस। Weak acid like HF, strong base like NaOH, NaF. NaF sodium fluoride. Weak acid like acetic acid and strong base like KOH. Acetic Potassium acid perchlorate. plus Potassium KOH, Potassium acetate. Potassium acid. CH3CO माइनस K+, यानी पोटेशियम का एसेटेट बन गया। वीक एसिड में एसिडिक एसिड और वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Ammonium acetate. अमोनियम एसेटेट, और अमोनियम एसेटेट का फॉर्मूला विल बी CH3COONH4। तो ये क्लियर हो गए सब एग्जांपल्स। Yes, sir. ओके, so now let's talk about the salts का हाइड्रोलिसिस। कोई भी सॉल्ट अगर रहेगा, लेट्स से NaCl, हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन यूजिंग वाटर, और पानी से अगर वो ब्रेक होगा तो NaOH और HCl बनाएगा। तो ऑफ कोर्स कोई भी सॉल्ट हाइड्रोलाइज होने के बाद अपना एक बेस और एसिड बनाएगा, बट NaCl के केस में व्हाट एसिड इज फॉर्म्ड Strong acid. एंड व्हाट बेस इज फॉर्म्ड, Strong base. और स्ट्रॉन्ग है मतलब ये तो पूरा का पूरा डिसोसिएट करेगा एज Na+, OH-, H+, Cl-, NaCl भी पूरा डिसोसिएट करेगा Na+, Cl-, और पानी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट नहीं करेगा। तो आई कैन जस्ट रीराइट दिस इक्विलिब्रियम लाइक दिस। अब कैन आई जस्ट कैंसल ऑफ द cation and anion which are present commonly on both the sides, which will now give me that water is in equilibrium with H+ and OH-। मतलब NaCl पानी में जाने के बाद क्या पानी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ? No. नहीं. अगर वो डिस्टर्ब नहीं हुआ तो H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, और कितना है 298 केल्विन पे, 10⁻⁷. 10⁻⁷. एंड pH का वैल्यू कितना हुआ? 14. pH और pOH इंडिविजुअली 7, pH प्लस pOH 14 हो गया। मतलब कुछ कंक्लूजन्स यहां पर लिख रहा हूं, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एंटायर टॉपिक। Conclusion: for a salt of strong acid, strong base, the H+ concentration and the OH- concentration remains Constant. constant and 10⁻⁷ के बराबर। pH and pOH भी constant है 7 के बराबर, and the solution will remain as
Neutral. Is this clear, everyone? Yes. ठीक है, तो इस टेबल में आई एम जस्ट गोइंग टू summarize all the important things which will be required to solve the questions. Ab if I take the next example of the salt, that is ammonium chloride. So pehle to ammonium chloride, how would you read this? It's a salt of, HCl and H4OH. so on dissolution in water, it will form a weak base and a strong acid. अब ध्यान से समझना, अमोनियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट तो पूरा टूटेगा, पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं टूटेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, मतलब इट विल डिसोसिएट Partial. पार्शियली। तो ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड ही रखना है क्योंकि बहुत कम डिसोसिएट होगा, लेकिन HCl तो पूरा टूट जाएगा। तो अब Cl माइनस खाली कटेगा क्योंकि इट्स द अनायन कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर क्या समझा आपको, कटायन जो है पानी के इक्विलिब्रियम को अब डिस्टर्ब कर चुका है, और उस डिस्टरबेंस में H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गया? Increase हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तो वीक है ना, तो OH माइनस कम हो गया, लेकिन H प्लस तो पूरा टूटा, यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो बढ़ गया गया। रे? बढ़ गया। और सोल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक के बेसिक? Acid. Acidic. एसिडिक। और एसिडिक ही होना चाहिए क्योंकि हमारा सॉल्ट कैसा था? Strong acid. Strong acid. ठीक है, तो अब कुछ शॉर्टकट्स आपको बताता हूं। यहां पर कौन से आयन ने पानी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, कटायन की अनायन? लास्ट Cation. पार्ट देख लो, कटायन। तो पहला चीज यहां पर टू रिमेंबर इज दिस टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस इज कटायोनिक हाइड्रोलिसिस। क्या है? कटायोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, लेट मी जस्ट समराइज एट द बॉटम बिकॉज वहां स्पेस मैंने नहीं छोड़ा है। तो अगर मेरे पास सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का, ठीक है, तो द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इज कॉल्ड कटायोनिक हाइड्रोलिसिस। यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. And on hydrolysis by the cation, the H plus का concentration Increases. increases. अब H plus अगर बढ़ा तो pH is going to be Degrees. Less than 7. less than 7, क्योंकि साथ था मेरा, पहले पानी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं था तब, बट अब डिस्टर्ब हुआ, H प्लस बढ़ा, pH घटा। घटा किससे? 7 से। 7 से घटा मतलब सोल्यूशन बना दिया एसिडिक। Acid. अब यहां पर pH का वैल्यू 7 से कम इज कैलकुलेटेड एज 7 माइनस माइनस। इसके डेरिवेशंस आपको सिलेबस में नहीं है, इसका सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो pH की वैल्यू 7 से कम होगी, फॉर्मूला होगा 7 माइनस माइनस। अब माइनस में इट इज हाफ ऑफ pKb, मतलब ऑफ द वीक बेस, एंड हाफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, मतलब मिक्स करने के बाद जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका नेगेटिव लॉग लेकर डिवाइड बाय 2 करना है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू टू रिमेंबर फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। करेक्ट? यहां तक समझा? देन जैसे एसिड और बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होते हैं, सॉल्ट्स के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं KH। और KH की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू H²C, वेयर H इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। दो टर्म्स जो सिमिलर है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उनको हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं, और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था उसको हम H से डिनोट करके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, ऑस्टवर्ल्ड सॉल्यूशन लॉ के जैसा ही है।
यानी इन टर्न एच का वैल्यू अगर ढूंढना है और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दिया है तो रूट ऑफ के एच बाई सी होगा। ऑल्सो जो के एच का वैल्यू है दैट विल बी गिवन बाय के डब्ल्यू बाय द वीक बेस के बी। मतलब जो भी वीक है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यहां पर आएगा। तो देर आर टोटल 4 फॉर्मूलाज, पीएच का, केएच का जो कि ऑस्ट्रोल से रिलेटेड है, एच का जो कि अल्फा से रिलेटेड है, और केएच का जो कि के डब्ल्यू से रिलेटेड है। एम आई क्लियर विथ ऑल these 4 formulas? Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर ये समझा तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा आयन हाइड्रोलाइज करेगा, पानी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा? Anion. Anion. उसको हम बोलेंगे अनआयोनिक हाइड्रोलिसिस। और वीक एसिड वीक बेस में जो स्ट्रॉन्ग में हुआ था वैसे ही। क्या, अगर स्ट्रॉन्ग वीक में एक आयन हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो वीक वीक में दोनों करेंगे। दोनों करेंगे। बट उसके साथ साथ एक और डिपेंडेंसी आएगा जो मैं आगे बताऊंगा, डिपेंड्स ऑन के एंड के बी वैल्यूज। ठीक है, तो इसका डिटेलिंग मैंने यहां पर कर दिया केस 2 का। केस 1 ऑलरेडी डिटेल्ड है। अब एक मिनट, अब थर्ड केस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल मान के चलो एस अमोनियम एसिटेट का है, सॉरी अमोनियम नहीं, सोडियम या पोटेशियम एसिटेट का है। ठीक है, तो पहला, सबसे पहले जो समरी मैंने यहां बताया एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस में मुझे समरी बताना है आपको। बोलते जाओ, व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस इज दिस? अनायोनिक। अनआयोनिक हाइड्रोलिसिस। Then what will happen when anion is hydrolyzing? OH concentration increases. तो उसको समझने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस को देखने का, तो स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा, POH घटेगा, तो pH Greater than 7. greater than 7, making the solution Basic. Basic. बेसिक। और अगर सोल्यूशन बेसिक है तो pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो उसका फॉर्मूला बनेगा pH इक्वल टू 7 plus. प्लस प्लस, और ये प्लस में क्या आएगा, हाफ पीके ऑफ द Ka होगा। एसिड, यानी पीके प्लस आगे का पार्ट सेम, हाफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। अरे समझा? Yes, sir. अब दूसरा फॉर्मूला मैंने बोला था के एच का वैल्यू आएगा ऑस्ट्रल सॉल्यूशन लॉ के जैसा, विच इज सेम फॉर दिस एच स्क्वायर सी, एंड एच अल्फा के जैसा रूट ऑफ के एच बाई सी। एंड के एच का वैल्यू यहां पर आएगा के डब्ल्यू बाय Ka. के ए। सब कुछ सेम सेम है, खाली वहां पे माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है। यहाँ पे के ए जो है वो के बी से रिप्लेस हो जाएगा बस। तो अब चौथा केस, वीक एसिड वीक बेस का नाम, एग्जाम्पल Ammonium acetate. अमोनियम एसिटेट, करेक्ट। अब इसके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। अब वीक वीक मतलब दोनों इक्वली वीक हो सकता है या एक थोड़ा ज्यादा वीक हो सकता है एज कंपेयर टू अनदर। तो वो स्ट्रेंथ को एनालाइज करने के लिए विल रिक्वायर द वैल्यू ऑफ Pk. के बी। स्ट्रेंथ इज के बी। पीके भी बोल सकते हैं बट के बी स्ट्रेंथ डायरेक्टली दिखा देगा। मतलब के का वैल्यू के बी से बड़ा हो सकता है, यानी जो एसिड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है बेस से, या के वैल्यू के बी से कम हो सकता है, या दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब उस केस में
फर्स्ट केस, जब एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है टेस्ट से, तो सोल्यूशन बोल रहे Acidic. एसिडिक, पीएच की वैल्यू, Less than 7. less than 7. और अगर केबी बड़ा है तो सोल्यूशन, Basic, more than 7. और दोनों इक्वल रहेगा तो सोल्यूशन, Neutral, New. और पीएच की वैल्यू 7. 7. 7। अब ये जो लेस देन 7 या ग्रेटर देन 7 है, उसको ढूंढने के लिए वीक वीक का एक फॉर्मूला है, विच इज 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी। 7 plus half pKa minus pKb. So if you are given a weak acid, weak base, and you are asked to find pH, just use this formula, 7 plus half pKa minus pKb. Also, the KH here is equal to H square, and it's just H square. Matlab here, the KH hydrolysis is not dependent on concentration. क्योंकि जब इसके डेरिवेशन करोगे तो वीक एसिड का भी अल्फा सी आएगा और वीक बेस का भी अल्फा सी आएगा, वो दोनों सी सी कैंसिल हो जाता है और इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म उड़ जाता है। तो कई बार ऐसे बोलते हैं, विच ऑफ द सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यू हैव टू सर्च फॉर अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड वीक बेस। एच यहां पर क्या हो जाएगा, जस्ट रूट ऑफ के एच। और जैसे मैंने के एच का कॉन्सेप्ट बताया, इट विल बी नाउ के डब्ल्यू अपॉन वीकर पार्ट, और वीक पार्ट क्या है, K, KB. तो दोनों आएगा के ए के बी। तो ये फॉर्मूलाज बहुत सिंपल है अगर आपने लॉजिक समझा तो। क्लियर? So that is a detailed summary about the hydrolysis of salts with the 4 cases analyzed with strong and weak acid का combination and strong base, weak base का combination. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me just summarize what we have done today. Through the ionic product of water, I discussed about Kw, and I discussed about the effect of temperature on Kw, pH, pOH, pH scale, H plus, OH minus, everything. मतलब इसके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। फिर मैंने अल्फा का वैल्यू भी डिस्कस किया, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच भी डिस्कस किया। Then through the problems, I discussed about how to calculate the pH when H plus is given or vice versa. Then the approach when the weak acid or weak base का K, Kb, alpha concentration or the pK, pKb is to be found. वो दो questions के through I covered many of the different MCQs. Then the relation of Ka and Kb for acid and its conjugate base, or the base and its conjugate acid, is equal to 10 raised to minus 14 Ka into Kb. फिर कॉमन आयन इफेक्ट का मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट बताया कि मरे हुए को और मार देता है, वीक बिकम्स वीकर, एंड देन एक एग्जांपल भी सॉल्व किया टू अंडरस्टैंड कॉमन आयन इफेक्ट न्यूमेरिकल। देन हाइड्रोलिसिस के 4 केसेस को एनालाइज करके उसके सारे फॉर्मूलाज को हमने सम अप किया, व्हिच यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली। जस्ट बाय लुकिंग एट द स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट you decide the acidic or basic solution, and weaker component has to be taken in the formula. I repeat, stronger component को देखकर आप solution के टाइप को बता सकते हो, जैसे strong अगर acid है तो acidic, लेकिन formulas में जो AB या PKB आता है वो of course weaker का ही होता है, तो weak वाले का आ जाएगा। तो सेम लॉजिक मैंने थर्ड के लिए यूज किया, 4 फॉर्मूलाज डिराइव किया, एंड फोर्थ के लिए 3 केसेस एंड देन अ कॉमन फॉर्मूला with a KH only equal to H square का concept independent of concentration. ठीक है? So up to hydrolysis, you can start solving the MCQs up to hydrolysis. Complete the workbook, complete the MCQs up to the hydrolysis from master the NCERT, start solving the PYQs.
Now we are left with only the buffer solutions and the last part, solubility product. That I'll cover in the next session along with the doubt solving up to the hydrolysis part. Fine. Any doubts up till here? Also. No, sir. Fine.